جی جی تشریف رکھیں جی چیئرمین صاحب بہت بہت شکریہ. میں مختصر بات کروں گا کیونکہ میری ترمیمی بل کے حوالے سے اتنی زیادہ باتیں ہوئیں, تلخی بھی پیدا ہوئی, ہونی نہیں چاہیے تھی, لیکن بہرحال جب آرگیومنٹ نہیں ہوتے تو پھر تلخی پیدا ہوتی ہے. اب میں صرف ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا, صرف جواباً اور وضاحت بھی کرنا چاہوں گا اپنے دوستوں کو جنہوں نے اتنی زیادہ دھواں دار تقاریر کی اور بدقسمتی سے میری ترمیم کو اور میرے میسج کو اور میرے پروپوزل کو سمجھے بغیر. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی کتاب غبار خاطر سے ایک مثال کوٹ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ایک بہت ہی پرانے دور جاہلیت کے عربی شاعر امیہ بن ابی سلط کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ امیہ بن ابی سلط کا ایک شعر ہے جو انہوں نے عربی میں وہاں پہ نقل کیا ہے. اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ امیہ بن ابی سلط جب کہیں جاتے تھے اور ان کو کہیں قبر نظر آتی تھی تو وہ رونے لگ جاتے تھے. تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے, جدھر بھی آپ کو کہیں قبر نظر آتی ہے تو آپ رونے لگ جاتے ہو, ان قبروں میں آپ کے رشتہ دار ہیں یا کیا عزیز ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا, اس شاعر نے کہا, اس شعر میں وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ قبریں دیکھ کر اپنے بھائی کی قبر یاد آ جاتی ہے. میرا بھائی جس کے ساتھ بڑا ظلم ہوا, جس کو مارا گیا, تو اس لیے میں روتا ہوں. یہاں اس کے ساتھ ساتھ ایرسٹوٹیلین کیتھارسس ایک تھیوری ہے لنگوسٹک کرٹیسزم کی. اس میں کہا جاتا ہے کہ جو تماشائی ڈرامے کو دیکھ کے سب سے زیادہ چیختا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کو ڈرامے کے ڈائلاگس کی اور ڈرامے کے مفہوم کی سمجھ ہی نہیں آئی. اب میں آتا ہوں دوسرے آرگومنٹ پہ. وہ یہ کہ بڑی عجیب سی بات ہے, میں نے بات کی ہے نیشنل فائنینس کمیشن کے ایوارڈ کے حوالے سے جو آرٹیکل 163A میں جو طریقہ کار ہے اس پر میں نے ترمیم کی, ایک بات کی ہے. یہاں پر بات شروع ہوتی ہے, صدارتی نظام کی طرف حملہ ہو جاتا ہے, پھر جو ہے فوج کو رگڑ دیا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں سازش کی بو آ رہی ہے, کچھ کیا کہتے ہیں کوئی جمہوری نظام پہ حملے کی بات کر رہا ہے. بہت ہی احترام سے شہری رحمان صاحبہ نے شروع میں جو تقریر کی اس میں انہوں نے جو جملے استعمال کیے کہ سازش ہو رہی ہے, یہ جو ایک طریقہ کار کے تحت یہ ایجنڈا آئٹم لایا گیا, اس پہ مجھے شک ہے. اللہ میں حیران ہوں کہ ایسے آپ کو سازش کی بو آ جاتی ہے, لیکن جن چیزوں پہ آپ کو بو آنی چاہیے وہاں پہ آپ کے olfactory nerves جو ہیں اور olfactory lobes جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے. اب میں اس کے بعد innuendos اور insinuation and innuendos, اشاروں اور کنایوں میں الزامات لگانا, یہ تو پرانا وتیرہ ہے, لیکن یہ مضبوط لوگوں کا وتیرہ نہیں ہے, یہ دلیل والے لوگوں کا وتیرہ نہیں ہے, یہ مدبر لوگوں کا وتیرہ نہیں ہے, یہ علمیت رکھنے والے لوگوں کا وتیرہ نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا وتیرہ ہے جس کے بارے میں ایرسٹوٹیلین کیتھارسس میں کہا گیا ہے کہ جب انہیں سمجھ نہیں آتی تو وہ شور بہت کرتے ہیں. بہت احترام کے ساتھ اپنے ساتھیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی یہاں تقاریر کی سوائے چند کے, انہوں نے میرے ایشو کو سمجھا ہی نہیں ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا چاہ رہا ہوں, میں NFC ایوارڈ کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی میں ایسا کوئی کام نہیں کر رہا. اگر آپ کہتے ہیں تو میں ان آیات کے اوپر حلف اٹھا کے, قسم اٹھا کے آپ کو یقین دلاتا ہوں, میں آپ کے ان کمزور صوبوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو صحیح طریقے سے وہ حقوق نہیں مل رہے جن کی ڈاکٹر جمال دینی صاحب نے بات کی. لیکن مصیبت یہ ہے کہ سیاسی تعصب, گروہی تعصب اور کچھ لوگوں کو اپنی تقاریر ٹی وی کے ذریعے دکھانا اور شاید سینٹ کا اگلا ٹکٹ انشور کرنا, اس کی اتنی زیادہ آبسیشن ہے کہ آپ میری بات کو سمجھے بغیر میرے اوپر اعتراضات کرنے لگے ہو. کاش آپ یہ اعتراضات میری بات کو سمجھ کے کرتے. آپ سمجھ کے کرتے تو آپ یہ اعتراضات نہ کرتے, آپ کچھ اور اعتراضات کرتے. بہرحال لیٹس ہیو اٹ. پولیٹکس ہے, سیاست میں ایسا ہوتا ہے. ربانی صاحب میرے بہت محترم ہیں, یقین کریں میں دل سے ان کی, جب میں ان کی بات کرتا ہوں میں دل سے ان کی کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں. لیکن انہوں نے ایک بڑی عجیب سی اصطلاح استعمال کی, اشرافیہ کی سازش ہے اس پاکستان میں. اشرافیہ کیا ہے؟ پہلے تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں. بالکل ہوگی سازش, لیکن اس سازش کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اشرافیہ ہے کیا جس کی سازش آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اشرافیہ کی دو ہی تعریفیں ہیں. ایک تعریف ہمارے قرآن نے اور ہمارے اسلام نے اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی طبقے کا, کسی بھی معاشرے کا معزز ترین طبقہ کیا ہونا چاہیے, اس کے انہوں نے سٹینڈرڈ مقرر کیا ہے. وہ دو ہیں, ایک فقر اور ایک تقوی. یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کو اشرافیہ کی کلاس میں آپ کو انکلوڈ کرتی ہیں, آپ اس کا حصہ بنتے ہیں. بدقسمتی سے میں نہیں سمجھتا کہ وہ دونوں کوالیفیکیشنز اس ملک میں کوئی پوری کر رہا ہے. اب میں آتا ہوں
उस अशराफिया की तारीफ पे जो आपके प्रोबेबली रूहानी असातिज़ा ने की है। एक उनमें कार्ल मार्क्स है, एक फ्रेडरिक एंगल्स है। मैं इन दोनों की मिसाल दूंगा क्योंकि उनका लोगों को पता है, बाकियों को पता नहीं है, वरना मैं कई और लोगों की मिसालें भी दे सकता हूं। वो ये कहते हैं कि अशराफिया वो तबका होता है जो ज़राए पैदावार पर काबिज होता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिसके कब्जे में होते हैं, जिसके बाद दौलत होती है, और उसके नतीजे में वो इक्तिदार के मंबा पे काबिज हो जाता है, फिर इक्तिदार करते हैं, माशरे को वो कंट्रोल करता है, रियासत को कंट्रोल करता है। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की जरा तारीख को रिवाइंड में लेके जाएं, रिवर्स में पीछे लेके जाएं, चंद साल पहले किसकी हुकूमतें रही हैं इस मुल्क में? क्या मेरी रही है? मेरे तो पूरे खानदान में कोई पार्लियामेंट का मेंबर भी नहीं बना, लेट अलोन के वो हुकूमत में रहे। मैं तो एक मिडिल क्लास का आदमी हूं, किसी की मेहरबानी से सेनेट में आ गया हूं। आज यहां पर मुझे फौज का एजेंट कहा जा रहा है, कोई एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट कहता है। बात यह है, आप कहां से आए हो? आप देखो अपने जराए इक्तिदार को, जराए मुनाफे को, जराए पैदावार को देखो। इतना पैदावार तो कारून के पास भी इतने खजाने नहीं थे जितने आपके पास हैं। इतनी दौलत तो फिरौन और नमरूद के पास भी नहीं थी जितनी आपके पास है। खुदा के लिए जब किसी पर इल्जाम लगाते हो तो उससे पहले अपने गिरबान को भी देख लिया करो कि तुम खुद कहां से बोल रहे हो। मुझे यह बताओ, यहां जमहूरियत की बात की, डिक्टेटरशिप की बात की जाती है। यार अपनी पार्टियों को जरा देख लो, खुदा के लिए अपनी पार्टियों को, मेरी पार्टी को ना देखो, किसी और की पार्टी को ना देखो। कौन सी पार्टी है जिसमें दादा, बाप और बेटा और बेटी और पोती और पोते इक्तिदार नहीं कर रहे? उनको आगे आप सैल्यूट नहीं करते, उनके आगे आप बैठते नहीं। आपको तो पार्लियामेंट में आना उनके मूड पर डिपेंड करता है। आपकी क्वालिटी से ज्यादा उनका मूड होता है कि आप पार्लियामेंट में टिकट लेके आते हो। इसलिए फिर अशराफिया की बात करते हो। अल्लाह रसूल का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, अगर मेरी मुखालफत करते हो कम से कम हक की बात तो करो, अपनी जमीर को तो सुनो। क्या बात करते हो? किस अशराफिया की बात करते हो? आप कहते हो, आप बड़ी अजीब सी बात की रजा रब्बानी साहब ने, शेख मुजीबुर रहमान को इस्लामाबाद की सड़कों से पटसन की बू आ रही थी। यकीनन ये उसका डायलॉग था, यकीनन ये उसका डायलॉग था। लेकिन आज मुझे लाड़काना की सड़कों से उस दौलत की बू आ रही है जो सरे महल, जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स और पता नहीं कितनी कितनी शक्लों में बाहर बैठी हुई पड़ी हुई है। मुझे उस पे आप अपनी लाड़काना की बात करें प्लीज। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। आपको जब वो बात कर रहे थे तो आप सुनें जी। आपको ढाका नजर आता है, आपको 1970 का ढाका नजर आता है। ये आज का लड़काना की तरफ भी देख लो। खत्म हो गई बात। अब आपने कहा नेशनलिस्ट फोर्सेस जो है वो डिवाइडेड हो चुकी थी और हमने उनको ठीक किया, हमने उनको ठीक किया। तशरीफ रखें सर जी। मोहतरमा बैठ जाए, टिकट आपका नेक्स्ट टाइम। सेनेटर साहब आपकी पार्टी से बात हो गई जी। आपका टिकट कंफर्म है, आप बैठ जाएं। आपका टिकट बिल्कुल कंफर्म है, इंशाल्लाह आप हमारे सर पर काबिज रहेंगी इसी तरह। अच्छा, अब मैं आता हूं दूसरी बात पर। कहा गया नेशनलिस्ट फोर्सेस, ये नेशनलिस्ट फोर्सेस को अगर आपने खत्म कर दिया 18वीं तरमीम के जरिए तो ये कराची के स्टॉक एक्सचेंज पर किसने हमला किया था? वो तो आज भी पहाड़ों में लड़ रहे हैं और इक्तदार में आप कई कई साल से बैठे हुए थे। यार ये 2.5 साल पहले तो पाकिस्तान नहीं बना था, जुलाई 2018 में तो नहीं बना था। ये पाकिस्तान तो 1947 में बना था और उस दिन से लेकर उस वक्त तक आप ही हुकूमत कर रहे हैं। आप ही की मुख्तलिफ शक्लें हैं, आप ही की मुख्तलिफ नस्लें हैं, हमने तो नहीं हुकूमत की। इसलिए ये जो नेशनलिस्ट फोर्सेज जो फाटा में लड़ रही हैं या इधर लड़ रही हैं उधर लड़ रही हैं, जिनकी आप आज वकालत कर रहे हो सेवान में, उनके जुल्म की आप दास्तानें सुना रहे हो, यार ये नेशनलिस्ट फोर्सेज तो आज भी मौजूद हैं। आप उनको आपसे भी उतने ही गिले हैं जितने पुराने हुक्मरानों से थे। इसलिए खुदा के लिए थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर बात करें। अब मैं आता हूं इस बात पे कि 18वीं तरमीम पर तो बात होगी। पॉइंट क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद बिल्कुल 18वीं तरमीम पर तो बात होगी जी। आप डिक्टेट ना करें उसको। उस्मान साहब तशरीफ रखें जी। 18वीं तरमीम पर तो बात होगी क्योंकि 18वीं तरमीम कोई सहीफा नहीं है, हर कोई बात करेगा, हम भी बात करेंगे, हमारा आईनी हक है। हमें उसी आईन ने यह हक दिया है जिस आईन की आप तहफ्फुज़ की बातें करते हो, नारे लगाते हो, उसी आईन के तहत ही मैंने ये 18वीं तरमीम, ये एनएफसी अवार्ड में अमेंडमेंट की तरमीम पेश की है। इसलिए अब आखिर में मैं सिर्फ एक बात करना चाह रहा हूं जी। बात ये, आप डर किस बात से रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? मेजॉरिटी सेनेट में आपकी है, आपको पता है इसी आईन में आपने खुद लिखवाया है कि 2/3 मेजॉरिटी से तरमीम होगी। यार आप अपने आप को काबू रखें। वो पश्तो की एक कहावत है, चेयरमैन साहब कहते हैं, गावंडी तक गिले मकवा पल अच्चर गए काबू कच गावंडी कर आगे ना चाहिए।
अपनी मुर्गी को कंट्रोल करो कि तुम्हारी मुर्गी पड़ोसी के घर जाकर अंडे ना दे। मत करो पड़ोसी के ऊपर ताने और इल्जाम तराशियां, ये तुम्हारी मुर्गी का कसूर है। अपने मेंबरान को काबू रखो, इंशाअल्लाह तुम कायम दायम रहोगे। ये ना हो कहीं स्लिप हो जाएं, ये मुझे थोड़ा सा शक आ जाता है बाज़ औक़ात। भाई ये जरा अपने घोड़े काबू में रखा करो, इल्जाम ना लगाओ। सर आखिरी बात, क्योंकि यहाँ मेरे ऊपर बहुत ज्यादा जाती हमले भी किए गए। उस्मान काकड़ मेरा भाई है, मैं बरमला कहता हूं मेरा भाई है, मुझे बहुत पसंद है इसलिए कि नजरियाती आदमी है। यह अलग बात है कि उसके नजरिए से मुझे इख्तिलाफ होगा। और है जब ये सुर्ख इनकलाब के नारे लगाते थे, जब इनके पार्टियां सुर्ख इनकलाब के नारे लगाती थी, जब डॉक्टर नजीब और बब्र कारमल को ये सपोर्ट करते थे, जब रूस की यलगार को ये यलगार नहीं कहते थे, जब उस जंग को ये फसाद कहते थे, उस जहाद को ये फसाद कहते थे, उस वक्त उस फसाद का मैं हिस्सा था। मैं रूसी फौजियों के खिलाफ अफगानिस्तान की कई वादियों में लड़ा हूं, मैंने इनके उस इनकलाब को शिकस्त दी है। रूसी फौजियों ने अपनी लाशें वहां छोड़कर वो वहां से गए हैं। इनके साथ मेरा नजरियाती इख्तिलाफ है, नजरियाती दुश्मनी है, लेकिन उसके बावजूद अपने नजरियाती दोस्त की दुश्मन की मैं कदर करता हूं क्योंकि नजरियाती है। लेकिन जाती हमले आपको भी नहीं करने चाहिए। उस्मान काकड़ साहब, आप नहीं समझते कि मैं कौन हूं। मुझे आपको क्या पता मैं कहां से आया हूं। आप एक सिंपल सी बात पर 18वीं तरमीम पर आपने फौज के ऊपर इल्जाम लगा दिया। मौलाना साहब की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, वो इस काबिल ही नहीं थी उनकी गुफ्तगू के उन पर बात की जाए। आप पाकिस्तान की फौज पे बात की आपने कि तुम जंग लड़ने वाले बनो, तुमने जंग नहीं लड़ी, तुमने कौन सी जंग जीती है। तुमने ये इल्जाम ताना दिया पाकिस्तान की फौज को। यार खुदा के लिए, खुदा और रसूल के लिए तारीख को उठा के देख लो, और तुम जंग लड़ने वाली कौम बनो तो तुम्हारी फौज जंग लड़ लेगी। अब ये गोली चली नहीं होती कि तुम लोग मुजाहरे शुरू कर देते हो। किसके खिलाफ तुम लोग उठे और तुमने बंदूक उठाई है? किस पर आओ आज कश्मीर में घुसो, किसने तुम्हें रोका हुआ है? किसने तुम्हें रोका हुआ है? जाओ कश्मीर का जहाद करो, आजाद कराओ, पाकिस्तान की फौज तुम्हारे पीछे है। अफगानिस्तान में जाके जहाद करो, पाकिस्तान की फौज तुम्हारे पीछे। इल्जाम लगाना, सियासत करना और कहना फौज नहीं लड़ रही, इंतहाई अफसोस की बात है। और मुझे बड़ी शर्म आती है ये बात करते हुए, लेकिन मैं फिर भी आखिर में ये कहूंगा कि ये अगर कहते हैं कि मैं फौज का आदमी हूं तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं, हां हूं। ये पाकिस्तान की फौज है, ये इसराइल और हिंदुस्तान की फौज नहीं है। मैं पाकिस्तान की फौज का हामी हूं, सपोर्टर हूं, उनके लिए खड़ा हूं। मेरी जान, मेरी आबरू, मेरी जिंदगी पाकिस्तान की फौज पर कुर्बान है, इसलिए कि पाकिस्तान की फौज मेरे लिए लाशें गिरा रही है। कल भी उनके 4 जवान शहीद हुए हैं। तो मुझे बताओ तुम्हारी कितना खून के कतरे बहे हैं? तुम तो मुर्गी ज़बह करके भी शहीदों में अपना नाम नहीं लिखवा सकते, क्योंकि मुर्गी भी आजकल शायद 200-250 रुपए की मिलती है, उसमें पैसे खर्च होते हैं, और तुम्हें पैसे जमा करने की आदत है, खर्च करने की आदत नहीं है। इसलिए ना करो ये बातें और ना मुझ पर इल्जाम लगाओ। और आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेरी बात को समझे बगैर जो चीख शोर शराबा हुआ, उससे मुझे अल्लामा इकबाल की एक शेर आखिरी याद आते हैं और उससे मैं खत्म करता हूं। वो कहता है, हुजूर हक में इसराफील ने मेरी शिकायत की, हुजूर हक में इसराफील ने मेरी शिकायत की, ये बंदा वक्त से पहले कयामत कर न दे बर्पा। आज मैंने ये कयामत यहां बर्पा कर दी है। आज मैंने लोगों की चीखें निकलवा दी हैं। आज लोगों ने चीखें मार मार कर अपना इजहार कर दिया है कि वो कितना डरते हैं तब्दीली से, कितने वो पुराने दौर के पुजारी हैं, कितने वो नए सूरज को तलू होने से डरते हैं। यहां पर बात की गई दौलत की। मीर कबीर साहब ने बलोचिस्तान का रोना रोया। मीर कबीर साहब आप मेरे भाई हैं, उस्मान काकड़ साहब आप मेरे भाई हैं। मैं समझता हूं बलोचिस्तान के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन आज बलोचिस्तान क्यों गरीब है, जरा मैं आपको इसकी सिर्फ आखिरी वजाहत देना चाहता हूं। बलोचिस्तान चेयरमैन साहब इसलिए गरीब है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले हमें वो वजह बता दी थी, और वो वजह आज मैं आपके सेनेट पे दोहराना चाहता हूं। उनकी हदीस है, वो फरमाते हैं कि जब किसी कौम के बड़े, किसी कौम के हाकिम दौलत की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएं, वो कौम जलील और गरीब हो जाती है। मीर कबीर साहब, आप जैसे लीडर इस हाउस में बैठे हुए, कौमी असम्बली में बैठे हुए, जरा उनकी दौलत का हिसाब चेक करें और जाए फिर उन गरीबों का भी देखें जिनके नाम पर आप वोट लेकर यहां आते हैं, और फिर उनका रोना रोकर मजीद दौलतमंद होते हैं। खुदा के लिए ये बात ना करें। दौलत का फार्मूला मेरे कायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले आपको बता दिया था। आप किसलिए गरीब हैं कि आप उसको गरीब रखना चाहते हैं ताकि आप उसका इस्तेसाल करें, वरना गुर्बत कब की खत्म हो चुकी होती। आपके बड़े बड़े वडेरे, आपके बड़े बड़े सरदार साथ दौलत के जराए पर काबिज हैं, इसलिए बलूचिस्तान गरीब है। अपने गिरबान में डाल के देखें। और खत्म करता हूं इस बात पे कि समझ कर दलील से बात करें।
یہی آپ کا وتیرہ ہونا چاہیے. نہ کریں یہ سیاسی جلسے, نہ کریں یہ ڈرامے بازیاں, ٹھیک ہے. اور نہ دھمکیاں دیں ذاتی. مولانا صاحب نے بھی دھمکی دی, عثمان کاکڑ نے بھی دی. عثمان کاکڑ صاحب, مولانا صاحب آپ بھی دونوں پشتون ہیں. میں بھی جب پیدا ہوا تھا تو میرے اس کان میں اذان کی آواز آئی تھی اور اس کان میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں نے سنی تھی. تھینک یو جی. اور میں نے ساری زندگی گولیوں کی تڑتڑاہٹ سنی ہے. اور میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جس دن میں مروں تو میں جو آخری آواز سنوں وہ ایک کان میں اذان ہو اور دوسرے میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ ہو. جی جی جی, کمیٹی کو بھیجنا ہے یا ووٹ کرا لوں جی؟